ہے اور اس لیے بڑے دھیان سے ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے دوسرا سلاطین اس کا 4 باب، اس کی پہلی 7 آیات۔ خدا کے پاک کلام کھولیے، اسکرین پر بھی آپ اس بل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ میرا خادم، میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض ہوا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرائے تھے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر دیا، اور اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی۔ اور وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا، اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے، سنے جانے کا خدا کی میرے گھر کے کوریڈور میں چھوٹی سی اسٹیج جو ہے وہ ڈسپلے ہے، تو لکھا ہے گاڈ بلیس اور ہو۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو اس کا فریم میں یہ آیات لکھی ہوتی ہیں گھر کے بارے میں، اور یہ دعا لکھی ہوتی ہے گاڈ بلیس اور ہو۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جو اس گھر میں آئے تو ان کو بھی برکت دے۔ بلیسنگ کیا ہے اور ہمارے گھر کس طریقے سے بابرکت ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ ہمارے گھر کس طریقے سے بابرکت ہو سکتے ہیں، یا کہ کسی کا گھر بابرکت ہے تو آپ اس کے گھر میں کون سی چیز کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ they are very blessed۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے میکوریس۔ میکوریس کا لفظ جو ہے مبارک خالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بابرکت، اور زبور اس کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کا ترکش بھرا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ زبور 127 مبارک خالی کا تعلق جو ہے وہ مختلف باتوں سے ہے، اور پہلے زبور میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح کرنے چرچا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو مبارک خالی کا تعلق جو ہے وہ 3 باتوں سے ہے، ہمارے بیٹھ کر اٹھنے سے، ہماری گفتگو سے، ہماری فیلوشپ سے۔ میکوریس مبارک، بلیسڈ، آپ تو گاڈ بلیس یو بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں، جہاں کہتے ہیں جی یہ بندہ جو بڑا بلیسڈ ہے جی۔ تو what is the picture in your mind about the blessedness؟ کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بڑا مبارک ہے؟ جی تھوڑا سا
अपने ज़हन को भी इस्तेमाल कर लिया करें। जो जिंदगी में खुशहाल हो, फैमिली में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी, दौलत से नहीं वैसे खुश हो, ऐसे कपल बच्चों के साथ जैसे हम। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, जरा ध्यान करें, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ जी, और क्या क्या आप ब्लेसड नहीं है? चुप कर रही है, कल एल्डर साहब ही ने, क्या आप ब्लेसड नहीं है? इस कंट्री में आने से ब्लेसड हो गई। अच्छा, और जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहा है, उसको भी आप ब्लेसड कह सकते हैं। हाँ जी, और एल्डर साहब जिसके पास कार है वो, अच्छा जिसके पास कार हो ब्लेसड, जिसके पास नहीं हो ब्लेसड नहीं है, अच्छी वो बेकार है। जिसके पास कार है वो जिसके पास कार नहीं वो बेकार है। छोटे हाथ, एक एक करके बोले। अच्छी सेहत के लिए, हाँ जी, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी सेहत है जिसकी, वो ब्लेसड है। जी एल्डर साहब, जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं और उसके कलाम पे अमल करते हैं। अच्छा वो ब्लेसड है, थैंक यू। हाँ जी, इनमें से जो 50% आंसर थे ना वो गलत है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन किन्होंने जो गलत आंसर दिए वो भी आपको देख लेंगे। तो मुबारक खाली का ताल्लुक जो है वो इन सब बातों से ये नहीं है। आप इस खानदान में क्या देख रहे हैं तस्वीर में? सॉरी जो लोग मीडिया में जुड़े हैं शायद वो, अगर आप किसान से थोड़ा सा ऊंचा कर दें तो सुबह में किया जिसको आगे इसको थोड़ा सा ब्रेक करें ताकि वो लोग जो है बहुत बड़ा गिला करते हैं, स्लाइड नहीं देख पाते तो वो देख सकते हैं। आगे फैमिली में आप क्या चीज देख रहे हैं? They are sitting together on the dining table, unity और दुआ, yes, they are praying together. This family, they are sitting on the table and they are praying together. अब पहली बात अब देखिए कि कौन सा खानदान बाबरकत है जो कि नहीं, जो कच्चे हैं, जो कच्चे हैं वो बाबरकत है। एक फिल्म मैंने देखी 2020, उसमें वो बता रहे थे कि जो जब दुनिया खत्म हो जाएगी उसमें बड़ा उन्होंने दिखाया कि लोग छुप रहे होते हैं और सैलाब आ जाता है, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। कुछ लोग जो उसमें बच जाते हैं और वो उस दरिया के किनारे खड़े होते हैं, लोग कश्ती कुर्ती बहुत बड़ी उसमें पनाह ले रहे होते हैं। तो बेटा जो है वो अपने बाप से कहता है कि वेयर इज योर होम, और बाप कहता है कि वेयर देयर आर वी टुगेदर दैट इज ओवर, वेयर इज द फैमिली दैट इज ओवर, जहां पर हम इकट्ठे होते हैं वो हमारा घर है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे हैं और दुआ कर रहे हैं, यूनिटी अमंग द बिलीवर्स। और एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं विलियम जे बेनेट साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, होम इज अ शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म एंड सॉर्ट ऑफ स्टॉर्म्स। घर जो है वो एक ऐसी पनाह है, शेल्टर है जो हमें तूफानों से बचाता है। इफ यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, you are tired, and the first thing which is coming into your mind, you are thinking, I will go my home. मैं अपने घर जाऊंगा और आराम करूंगा। So you are seeking peace and comfort in your home. Home sweet home, बहुत हम ये कहते हैं, east and west, but the home is best. ये आम बातें हैं, हम सुनते हैं। मुझसे बेटा जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपना सारा माल मता उसने बर्बाद कर दिया, सुरों के साथ गलियां खाता है, और वहां पर उसके जहन में ये बात आती है, क्या अल्फाज है कि मेरे बाप के घर में नौकर भी जो है वो मुझसे बेहतर खुराक खाते हैं, बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। Why I should stay here? मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा और फिर कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मैं तेरा
मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। क्या बात उसके ज़हन में आई? I'll go back to my home. मैं अपने घर जाऊंगा। अपना घर उसको याद आता है और वो उसको अहमियत देता है। Where he was belong, जहाँ उसका ताल्लुक था। बहुत ही खूबसूरत आयात है, आप जरूर इनको नोट करें। इंसाल 3 बाब 33 आयत। इसको मैं चाहता हूं कि आप इस आयात को अपने पास लिखें, क्योंकि आप इसको बेहतर तौर से अपनी जिंदगी को इन आयात की रोशनी में आप डाल सकते हैं। और मैंने कहा कि ये जो एक थॉट प्रोवोकिंग आज ये सरमन है, आपके लिए यकीनन बरकत का बायस होगा। इंसाल 3 बाब उसकी 33 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वर्स 33, शरीरों के घर पर खुदावन की लानत है, लेकिन साथों के मस्कर पर उसकी बरकत है। Curse is on the house of the wicked, but the blessings is the home of righteous. Wicked कौन है? शरीर कौन है? फिर मैं जाऊंगा ज़बूर पहले की तरफ। शरीर वो है जो खुदावन के कलाम का ध्यान नहीं करते। मुबारक वो है जिसका खुदावन के कलाम पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। खुदावन उनको मुबारक कहता है। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो दूसरे की मान से उड़ा ले जाती है। शरीर वो है जो शरारत को खोज कर निकालता है। विकेट, but the righteous is the person who is a blessed. वो जो कि रास्तबाज है, उसको हम कहते हैं उसके घर पर खुदावन की बरकत है। आगे चलते हैं हम ज़बूर 127 अभी मैंने रेफरेंस दिया आपको। अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से है। अगर खुदावन ही घर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से है। खुदावन घरों को बनाता है। यहां पर मैं जो हाथ के बने हुए घर की बात नहीं कर रहा, I'm talking about the family. सिर्फ हाथों के बने हुए घर की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग टेंटों में रह रहे हैं, कोई शाल उनकी वजह कर रहे हैं, खुदा उनसे डरते हैं, या झोपड़ियों में रह रहे हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते वो ब्लेस्ड नहीं है। खुदावन खानदानों को बनाता है, और खुदावन ने पहला खानदान जो बागत में बनाया, that was the holy family. पहला खानदान खुदावन तश्कील दिया। और ज़बूर में कहता है कि अगर खुदावन ही हमारी हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अवश्य है। और फिर हम आमतौर पर ज़बूर में जो है उसको पढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत ज़बूर है। पाली तेरे विच न कभी आवेगी। खुदावन हमें हर वबा से महफूज रखता है। खुदावन हमें बचाता है। मेरे साथ दोबारा खुदावन के पाक कलाम की जाने पढ़िए और हम प्रोवर्ब चैप्टर 24 इंसाल का 24 बाब उसकी 3-4 आयत को देखेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 24 वर्स 3 and 4। हिकमत से घर तामीर किया जाता है, फहम उसको क्या होता है। इल्म के वसीले से कोठरियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। इससे घर बनता है हिकमत क्या है? जनाई है नहीं, कलाम को देखा करें। खुदावंद का आगे वापस खुदावंद का खौफ दनाई का the fear of God, but the very beautiful word is another word, the reverence of God. खुदावंद की इज्जत, खुदावंद का खौफ, हिकमत और दनाई का शुरू है। So the source of that wisdom, Sophia, is the fear of God. Where there is a fear of God in the family, मुबारक है वो तो खुदावंद से डरता है। मैंने भी ज़बूर आपके सामने पढ़ा था। जहां पर खुदावंद का खौफ नहीं है, आपको पता है कि जब किसको कहे यार तुम ज्यादा खौफ नहीं, गलत काम क्यों होते हैं?
हरामकारी, ज़नाकारी, नशाबाजी और इस तरह के जुआ खेलना, इसलिए कि they don't have the fear of God. Then there is no blessing. कोई बरकत नहीं होती। और इसलिए खुदावंद कहता है कि जो मुबारक हैं जिनको खुदावंद जिनके घर तामीर करता है और खुदावंद जिनकी हिफाजत करता है और हिकमत से घर तामीर किया जाता है। इसलिए हम सबको खुदावंद के खौफ की जरूरत है, हमें हिकमत की जरूरत है और खुदावंद के घर में उसके खौफ में रहने की जरूरत है। हम दूसरों को बड़ी जल्दी ब्लेम कर देते हैं, कानून ऐसे हैं जी, बस बड़े अजीब कानून बन गए जी, पार्लियामेंट को ब्लेम देना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ब्लेम देना, प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम देना, बहुत सारे लोग क्वीन के खिलाफ बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट इन द पार्लियामेंट, प्रॉब्लम इन आवर होम, हमारे अपने घर में। हम सेपरेशन की बात करते हैं, हम डिवोर्स की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं और हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, अपने माइंडसेट को नहीं देखते, अपनी सोच को नहीं देखते, अपने ख्यालात को नहीं देखते, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। पार्लियामेंट आप देखोगे लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं। दो पिक्चर आज में देख सकते हैं, एक तो नीचे पार्लियामेंट में आप देखेंगे लोग झगड़ रहे हैं, जमका रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड इज वेरी कॉमन नाउडेज, नॉट ओनली यूके बट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान, वहां पर हमले पे बड़े लिखे लोग है ना ज्यादा। और ऊपर की तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन आर देयर टुगेदर इन द बेडरूम, बाप खड़ा है और बच्चे जो आपस में इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिट एग्रेसिव। सो द प्रॉब्लम इज इन द होम। आपने जो बैंक्रप्सी है उसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। क्या कभी आपने फाइनेंशियल बैंक्रप्सी से हटकर आपने कभी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी देखी? जो लोग माली तौर पर बैंकरप्ट हो गए हों, आप उनके बारे में सोचो उसके वो बैंकरप्ट हो गया, लेकिन क्या कभी आपने रूहानी जो बैंक्रप्सी उसके बारे में देखा है? वो क्या है? रूहानी तौर पर लोग किस तरीके से बैंकरप्ट होते हैं? बुरी जो बुनियाद है, जब आप घर देखने जाते हैं, आजकल हम अपने चर्च के लिए घर देख रहे हैं और घर जो है बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, दुआएं बड़ी अच्छी लगती हैं, उनका फ्लोर बड़ा अच्छा लगता है, बट नोबडी कैन से अबाउट द फाउंडेशन। क्या कभी आपने किसी घर ले तो पूछा कि इसकी फाउंडेशन कैसी होगी? आप दरवाजे, खिड़कियां, टॉयलेट, बाकी चीजें देख रहे हैं और कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इसकी फाउंडेशन कैसी होगी। सो द बैड फाउंडेशन लीडिंग टू द स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। अगर घर की बुनियाद अच्छी नहीं है, खुदा यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी एक कहानी, एक तस्वीर बयान की कि वो घर जो कि चट्टान पर बनाया गया वो कायम रहा और वो घर जो कि रेत पर था वो बर्बाद हो गया। अगर हमारी जिंदगी की बुनियाद, हमारे घरों की बुनियाद जो है वो रेत पर है, वो बाइबल पर नहीं है, यीशु पर नहीं है जो कि चट्टान है, तो वो शख्स बहुत जल्दी रूहानी तौर पर बैंकरप्ट होने को है, वो खानदान और रूहानी तौर पर बैंकरप्ट होने को है। ज़कई की कहानी को हम देखते हैं कि वो रूहानी तौर पर बैंकरप्ट हो चुका था और वो यीशु को देखना चाहता था। He was looking for a good banker, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को वो मिलता है और वो उसके साथ अपने फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो डिस्कस करता है कि मैं मासूल लेने वाला हूं, मैं टैक्स कलेक्टर, आई एम अ बैड मैन, आई डोंट हैव गुड रेपुटेशन, मैं लोगों से दुगना ले लेता हूं। तो कहता है नहीं, मैं मदद भी करता हूं लोगों की। और खुदा ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है क्योंकि अपने आदम को ढूंढने और निजात देने आया। If we are spiritual bankrupt, we need to share our problem with our Savior Lord Jesus Christ. We need to invite Him in our home. एक और जो
मुश्किल है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, लैक ऑफ ऑयल इन आवर फैमिली। कौन सा ऑयल है? अभी हमने एक वाक्य जो है पढ़ा है, एक नबी की बीवी थी, बेवा हो चुकी, उसके 2 बेटे थे, कर्जा उसके सर पे था। दैट वाज वेरी बैड सिचुएशन। अभी आपने दूसरा 4 बाप की पहली 7 आयत को आपने देखा है। So you can see the cry of that woman, you can see the situation and the condition of that family. उसके 2 बेटे थे, नबी की बीवी थी, anointed family, but they were bankrupt, under the debt. रो रही है, चाह रही है कि मेरे पास, उसको पैसों की, घर की फिक्र नहीं है। She was concerned about her 2 sons. कि मेरे 2 बेटे हैं, and that was the tradition, that was the law. If somebody failed to pay the debt, they were taking their children slavery के लिए। अच्छा, जब तक पैसा नहीं दोगे, ये बच्चे जो हैं ये गुलाम रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि किसी मां से उसके बच्चे जो है वो छीन लिए जाए। और इसके लिए वो फिक्रमंद है कि वो कर्ज को आएंगे और मेरे बेटों को ले जाएंगे। मिजरेबल, हेल्पलेस विडो, and this was very much concerned about widows. उसने खुदावन ने किस तरीके से देखे, भी हमने कहानी में सुना कि जिसने डबरी डाली, बेवा ने खुदावन ने कहा कि ये ज्यादा मेरे लिए आसपास है, इसका हदिया कबूल किया गया। She was in tension, and you can see the situation of transformation. तो बीवी आ रही वहां पे, और नबी से कहते हैं, अच्छा अगर तेरे पे इतना कर्ज है, your family in danger, what I can do for you? बता मैं तेरे लिए क्या करूं? हालांकि वो नबी की बीवी है, और वो कहते कि मेरे शौहर ने बड़ी खिदमत की है, लेकिन मेरी कंडीशन है वो ठीक नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके ये बात करता है कि तेरे घर में क्या है, व्हाट इज इन योर होम? कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। Me and my children, only 2 sons. बर्तन, कहता है बर्तन वो भी नहीं है। अब यहाँ पर बड़ी खास बात जो मैंने सीखी कि अलीशा से कहता है, ओके, अब देखें कि कैसी अजीब बात है कि उससे क्या डिमांड कर रहा है। और अगर आप इस बात को देखें तो अलीशा से कहता है कि तेरे पास घर में क्या है ना? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? खुदा मुझसे और आपसे भी ये सवाल कर रहा है, व्हाट इज इन योर होम? तेरे घर में क्या है? और उसने कहा कि तेरी लोड़ी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस, ओनली 1 कप ऑफ ऑयल। अब उससे क्या कहता था? उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब मसाइल से बर्तन बारह का वेसल्स, मैं आगे कर रही हूं और ऊपर से आकर मैं बर्तन भी ला रहे हूं, कौन मुझे देगा? ऑल द नेबर्स दे आर वेल अवेयर अबाउट माय पॉवर्टी। उनको पता है मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अब जो आके तो अपने नेबर का दरवाजा करता हूं, बर्तन उधार देता हूं, क्योंकि पहले पैसे नहीं तो पाड़े रहना है ना? व्हाट्स द बैड सिचुएशन? बट यू कैन सी द ओबीडियंस एंड द फेथ ऑफ दैट वुमन। उसने कहा कि जाकर बर्तन जो है वो उठा देंगे और काम नहीं देना, बर्तन जो है वो ज्यादा होने चाहिए। It was a challenge for the desperate woman. बड़ी मुश्ताक थी, उसके अंदर बड़ी डेस्परेशन थी कि मेरा कर्ज उतर जाए। ठीक है, जो नबी कह रहा है मैं उसको मानूंगी। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं खुदा की बंदी हूं। These children are the children of the prophet, but there is the spirit of obedience, faith. हम सोचते हैं खुदा मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं है। खुदा कहता तुम जाओ तो सही, I will give you everything.
I'm only looking your availability. I will give you the ability. और खुदा को कहता है कि तू जा, ताबे फरमानी कर। और वो नबी की बात को मानती है और जाकर वो बर्तन इकट्ठे करती है और उनमें तेल जो है वो भरना शुरू हो जाता है। खुदावन जब सामरी औरत से बात कर रहे थे, यूहन्ना का इंजील में 4 बाब बहुत खूबसूरत वाक्य है। सामरी औरत पानी भरने आती थी और खुदा से पानी मांगा, दोपहर का टाइम था, और उसने कहा कि तू यहूदियों का मुझ सामरियों से पानी मांगता है। यीशु ने कहा कि अगर तुझे मालूम होता है कि वो कौन है तो तुझसे पानी मांगता है, तो तुझे जिंदगी का पानी लेकर तेरे अंदर एक चश्मा बनता है। तो उसने कहा कि मुझे भी वो पानी मिला। There was a hunger and thirst, उसके अंदर प्यास थी, मुझे वो पानी मिला। हमारे घर में शायद वो सब कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ना हो, लेकिन खुदा मुझे चाहता है कि तेरे घर में क्या है। Anointing, that is the most important thing. हमने बहुत सारी बातें की, जिसके पास गाड़ी है वो बाबरकत है, जिसका घर अच्छा है वो बाबरकत है, जिसने 3 सूट पहना वो बाबरकत है ना। गड्डी वाला काम तेरा कला बैठ घूम रही हो, बड़े बड़े घर में बैठ के लोग अकेले हो रहे होते हैं। That's not the best. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसने कहा कि Are you thirsty? क्या तू प्यासी है? हमारे घर में क्या खाली बर्तन है? शायद हमें इस एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़े जब हम दूसरों को कहेंगे मुझे खाली बर्तन चाहिए। वो कहेंगे खाली बर्तन तो नहीं, क्या और पता नहीं कितने बर्तन उसने इकट्ठे किए होंगे, और उसने कहा कि दरवाजा बंद कर दे, और उसने अपने बेटों को लिया और दरवाजा बंद कर दिया। When God is pouring and God is helping you, sometimes you need to keep it yourself. यूसुफ की गलती क्या थी? उसने अपने भाइयों को बुला के खुदा मुझे बरकत दिया और भाइयों उसको गड़े में डाल दिया। This is a time for everything. When you are in the process of that spiritual journey, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू होते हैं, you are listening so many voices. जब मैंने रिजाइन किया अपने जॉब से, I was hearing so many voices. और नहीं ये भी वो काम है, छठो वापस आ जाओगे, बड़ा मुश्किल है। जब आप खुदा का काम करना शुरू करते हो, लोग आपको खींचते हैं। There was a danger कि जब खुदावन उन कुपियों को, उन बर्तनों को भर रहा था, somebody can interfere. They can stop that anointing. जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हो तो आपके लिए खतरात भी होते हैं। हज़रत साहब ने लिखा है कि इब्लीस शेर बदर की मानद धार का देता है कि वो हमें परागंदा करे। कभी भी इब्लीस को अंडर एस्टिमेट ना करें। और सामरी औरत भी खुदा के साथ इस बात को उसने बांटा और खुदा ने उसको बरकत दी। Then she went back to her home. वो अपने गांव में गई और सब में जाकर कहा कि मुझे क्रिस्टस मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। That was the time. जब खुदा आपको मामूर कर देता है, जब खुदा आपको बरकत देता है, फिर आप उसकी तरह एक बड़े मजमा के सामने खड़े होकर भी कहते हो कि वही यीशु जिसको तुमने मसलूब किया वो प्रॉमिस मसाया है। This is the time खुदा ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। Don't rely upon your strength. Don't rely upon your relationship with other people. Rely upon God. And you need more capacity, more vessel. कितना आप चाहते हैं? बात करते हैं बस मैं बड़ा मैंडेट हूं, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं, बड़ी बरकत दी है खुदा ने। क्या बरकत दी हुई है वो हमने भी सुनी की, अच्छा लिबास, अच्छा घर। Of course, these are the small
symbols or signs of the blessing. But the true blessing is the anointing. मसा के नीचे रहना, कुरान के कभी हाथ के नीचे रहना. How much do you want? कितना आप चाहते हैं? There is no limit. और लिखा है कि जब उसने कहा कि बस कोई बर्तन नहीं रहा, तब तेल मत रावण ने नहीं किया. That was his own invention. बर्तन नहीं. Oil is still there. Availability is still there. लेकिन हम क्या नहीं मालूम बर्तन कहाँ ना. आज हम अपने घर के बारे में सोचें कि हमारे घर में क्या है. शायद रुपया पैसा है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शायद anointing नहीं है. ये सब चीजें गैर कौम के पास भी है. और आज आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि आप गैर कौम को जब देखते हो कि जिनके पास बड़े खूबसूरत घर है, पैसा, वो कौन सा क्रिश्चियन है? जिसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है कि वो कौन सा क्रिश्चियन है? उसके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, वो कौन सा क्रिश्चियन है? बट देयर इज ओनली वन लैक. एक चीज की कमी है और वो है anointing. और जुआ जो टूटता है वो मसा के सिर से टूटता है. जकिया कहता है कि ये ना जोर से ना कुवत से बल्कि मेरी रूह से. खुदा कहता है कि पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा, टल जाएगा. If there are issues in your life, if there are problems in your life, you will be very strong among all these things. Beside all the problems, all the troubles, if there is the anointing, मसा है, खुदावंद का हाथ है, खुदावंद की कुवत है, तो फिर सब कुछ मुमकिन है. ये anointing बड़ी पावरफुल चीज है और कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और कभी भी इसको रिजेक्ट ना करें. खुदावंद ने जब भेजा सैमुएल को जाकर तो मसा कर बादशाह होने के लिए, बड़े खूबसूरत भाई आए दाऊद के, बड़े बड़े जवान का दावत खुदा कर नहीं. मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है एंड ही वाज डेविड. खुदा ने उसको मसा किया. दैट वाज anointing. और अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में ये मसा नहीं है, खुदा की anointing नहीं है, ये ऑयल नहीं है, खुदा का रूह नहीं है, then we are not blessed. I'm sorry for that. ये खुदा का काम करता है. Don't rely upon your wealth. Don't rely upon your other possessions. If you don't have the Holy Spirit in your life, if you are not anointed, you are very poor. खुदा का कलाम बड़ी सफाई से हमें कहता है और बड़े सख्त अल्फाज हैं. इन अल्फाज के साथ मैं आज इस बात को खत्म करूंगा. खुदा के पाक कलाम को देखें और फैसला आप खुद करें. खुदा का पाक कलाम में क्या कहता है. मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 15 से. मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तूने सर है गर्म पास तू सर में गर्म होता, पर चूंकि तूने गर्म है मैं सर करके नहीं गर्म है, इसलिए तुझे अपने मुंह से निकाल देंगे. और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे आग में खोया हुआ सोना खरीदे ताकि दौलतमंद हो जाए और सफेद पोशाक ले ताकि तुझे पहन कर नंगेपन की बातों की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ताकि पीना हो जाए. ये खुदा हमें तो नहीं कह रहा. हम जो अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर घमंड करते हैं, अपने तलकात पर घमंड करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी वाकई की बड़ी मैं तो वो काम भी मुश्किल नहीं, ऐसे मेरे पास पैसे बहुत है. एक शख्स है जो जब इस कंट्री में आया था तो बड़े बुरे हालात थे, हमारे पास भी वो कुछ दे रहे और खुदा ने को बरकत दी है. गॉड ब्लेस हिम. और वो शख्स ही कहता पैसा दस कंट्री करा जितना मेरे जितना मीर हूँ मैं चलो ठीक कर लूँगा. लेकिन अगर कम्युनिटी नहीं है उससे
आप मेयर नहीं कर सकते अपने पैसे को। सबसे कीमती जो है वो मसा है। ये दुआ की। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी कुपियों को भरता है, तू हमारे खाली वैसल से उभरता है। खुदावंद हमारे अंदर जो भी गुरूर घमंड है, खुदावंद उसे हलीमी और फरोतनी के साथ बदल डाल। तेरा खुदावंद हमारे घरों में तेरी अनॉइंटिंग हो, तेरा मसा हो, क्योंकि मसा के वसीले से बंधन टूटते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि मेरा खुदावंद तू हमसे प्यार करता है। हम इस बड़ी बख्शिश के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं, because we don't have to pay anything for that anointing.